वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। बहुत अच्छी सुबह है और इस सुंदर सुबह में मैं तुमसे फिज़िक्स पर बात कर रही हूँ। भाई मेरे लिए तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने गॉस लॉ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक चल रहा है। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, कूलम्स लॉ कर चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख चुके हैं विद हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। उसके बाद गॉस लॉ क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मार्क करके रखो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने गॉस लॉ के स्टेटमेंट को लिखना सीखा था और फिर हम लोगों ने गॉस लॉ के बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पॉइंट्स को समझा था। देन the essential properties of Gaussian surface, mark them also, very important for board. It's a frequently asked question that write one or two essential properties of Gaussian surface. तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। रिवीजन करते रहना और नोट्स अपने हाथ से रेडी करते रहना। आज हम लोग करने जा रहे हैं गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज़ को हम लोग डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज़ का केस लेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स पर चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडीज़ या नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो द फर्स्ट केस विल बी, से इट्स अ spherical charged conductor. Are you getting this? Field due to a spherical charged conductor. Now listen to the very basic of electrostatics. If you give charge to a conducting body, charge will always reside on the outer surface. So no matter conducting body is a solid or a hollow sphere, the charge will be on the outer surface only, so it will behave as it's a charged shell, a hollow sphere, because no charge will be inside the conductor no matter the conductor is a solid sphere, right? Now take the case if it is a non-conducting body, and non-conducting sphere is a spherical shell and you put the charge on the outer surface only, then also the case will be same, that we are having charge on the outer surface. No matter it's a non-conducting body, we are having charge on the outer surface and we are trying to calculate electric field at any point outside the conductor or non-conducting body, at the surface and inside the surface. We are going to find electric field. So whatever discussion we are going to do, that is applicable to a charged conductor, whether solid or hollow. And if it is a non-conducting body, then it's a shell. And we have given the charge to the outer surface only, then what will be electric field at some point, we are going to calculate it with help of Gauss law. Actually we are going to apply Gauss law first time on the first case, so you have to learn step by step the procedure. Very first step, carefully learn the steps, and if you carefully learn the steps, I can assure you that you will be master of these calculations after the class. This is a spherical body, right? And charge is on its outer surface only. Are you keeping this important point in your mind, that charge is on the outer surface only? And you are asked, find electric field at a point which is outside the surface.
I can say this condition with this language also, that find electric field at P which is at distance r from the center, and the spherical body is of radius capital R. Charge given to the body is Q, and this small r is greater than capital R. Point P is such that small r is greater than capital R, right? Now you are asked to calculate electric field. First step, select a proper Gaussian surface. Now recall, Gaussian surface must have two properties. First, the Gaussian surface should be such that it should pass through the point at which we have to calculate the field, right? And the second point was that this surface should be such that either electric field is constant throughout the surface. Listen to the conditions very carefully. Either electric field is constant throughout the surface, or electric field is perpendicular to the surface, then only we will easily apply the Gauss law to calculate field at P. So Gaussian surface must have these two essential properties. See, I have selected a spherical surface which is passing through P. Now come to the second condition and check whether that condition is being fulfilled or not. About the area vector. What we learned about the area vector? If it's a closed surface, and being a closed surface is also an essential property for the Gaussian surface. If it is a closed surface, then your area vector is always perpendicular to the surface and coming out of the surface. So this is your area vector. Perpendicular to the curve here and coming out of the surface. Arrow is coming out of the surface. And the second point was that electric field either should be constant throughout the surface or should be such that it is perpendicular to the area vector. Just understand this point, either electric field is constant throughout the surface or electric field is perpendicular to the area vector, right? So let me see which type of electric field do we have here. We have electric field coming radially outward. These facts you have to keep in mind, that if it's a spherical charge distribution, then electric field will be similar to the case where charge was placed at a point and the field lines were moving out of the charge. Here also electric field is coming radially outward, and electric field vector is perpendicular to the surface at every point, and electric field vector is parallel to the area vector at every point. At every point electric field vector is parallel to the area vector. And since every point of the surface is at equal distance from the charged body, so field is of same magnitude at every point.
Magnitude of field is same at every point, although direction is changing at every point. So recall every point once again. Is it a closed surface? Yes. Is the surface passing through the point where we are supposed to calculate field? Yes. Is the field's magnitude same throughout the surface? Yes. And also this fact is same, that at every point field is perpendicular to the surface. Now, field lines are not present inside the conductor. I have shown you that field lines are coming out of the surface and they are behaving as if center is having the charge. But inside the conductor, neither field nor field lines will exist. So keep this fact intact in your mind. Second thing, if it is a poor conductor, because I told you whatever we are going to discuss, that is true for a charged conductor, whether the conducting sphere is a shell or a solid body, and to the non-conducting shell which is having charge on its outer surface only. So if no charge is inside the sphere, then no matter whether it's a poor conductor or it's a conductor, field will not be inside the sphere. So now summarize all the points. The green surface is Gaussian surface. Green surface is Gaussian surface. It is fulfilling all the conditions. There is no field or field lines inside the spherical body, no matter whether it is a conductor or poor conductor, because the charge is at the outer surface only. Right? Now our diagram is ready and you can copy this diagram so that we can start our class now. Are we ready for the derivation of the calculation of the electric field? Yes. Now here again take this into your mind that the field lines are not inside the body. Field lines are not inside the body, beta. Right? Field lines, it's just to give you an idea that field lines are behaving like charges at the center, but field lines are starting from the surface only. So don't get confused with the diagram and don't get the wrong information. This is a charged body over which positive charge is at the surface only, and field lines are starting from the outer surface, radially outward. Right? Now come to second step of application of Gauss law. First step was selecting the proper Gaussian surface. Second step, mark the area vector and electric field vector at the point where we are supposed to calculate field. And as we have already discussed, area vector is perpendicular to the Gaussian surface. It's a spherical surface, and the charged body is also a
spherical surface. Area vector and electric field vector both are perpendicular to the spherical surface of the charged body as well as a spherical Gaussian surface. So what is the result? That electric field vector and area vector both are parallel to each other. Are you getting this point? Electric field vector and area vector are parallel to each other. So second step is mark the E vector and area vector at the point where we are going to calculate field. Third step, apply the Gauss law. See, third step is apply the Gauss law. And you can pause the video, and whatever I have explained you, I have written it in points. So you can pause the video, you can copy the diagram, then you can write all the points, all the steps which I am explaining you in your copy, and then we will move to the next point, that apply the Gauss law on the surface. On the surface, which surface? Gaussian surface. ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल दिमाग में. तो हमने ई और एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया और फिर हमने स्टेटमेंट लिख दिया. क्या है स्टेटमेंट? इसको कैसे पढ़ते हैं एक बार फिर से तुम्हें पढ़ के बता रही हूँ. सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to charge enclosed by the Gaussian surface upon permittivity of free space if it is free space, permittivity of medium if it is any medium other than free space. और कैसे पढ़ते हैं इसको ध्यान से सुनो. left hand side is flux coming out of the closed surface. अभी इसको क्या बोला था मैंने? स्फेरिक सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अब मैं क्या बोल रही हूँ? फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस. फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस किस सरफेस से बाहर आ रही है? गॉसियन सरफेस से. हर पॉइंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिमाग में होना चाहिए. तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो क्या हमने गॉस लॉ को ढंग से समझ लिया? अब अप्लाई करते हैं. स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 ये मैंने दिखाया है. देखो कि अगर चार्ज सेंटर पे रखा होता है तो इस तरीके से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, और जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी उसी तरह से रेडियली फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं. बस इनसाइड द सरफेस कोई फील्ड लाइन नहीं है, क्योंकि चार्ज चाहे वो कंडक्टर हो या पुअर कंडक्टिंग सरफेस विद चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फील्ड लाइंस अंदर नहीं है. तो अब हम लोग फोर्थ स्टेप पर आते कि हम लोग अप्लाई करते हैं इसको. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गॉसियन सरफेस इज E डॉट डी ए, इंटीग्रल E डॉट डी ए. तो देखो क्या हमने E और डी ए दोनों वेक्टर बना लिए थे P पर? हाँ बना लिए थे. तो अब इस डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन का साइन जैसे था वैसे ही लिख देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर cos 0. क्यों? क्योंकि E और A के बीच में एंगल 0 था. तो cos 0 1 हो गया, तो E डॉट डी ए सिंपली रह गया E इंटू डी ए. इंटीग्रेशन E इंटू डी ए. अब
अगला स्टेप, हम क्रॉस चेक करें कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेयर के हर पॉइंट पर, कौन से स्फेयर, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर, और गॉसियन सरफेस ये कैसा है, रिकॉल करते चलो पॉइंट्स को बार बार कि ये हमको याद हो जाए अच्छी तरह से। गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है जो उस पॉइंट से पास हो रही है जिस पर फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो क्या गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम था? हाँ था, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो इस E को, क्योंकि ये पूरे सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर सेम मैग्नीट्यूड की है, कांस्टेंट है, तो इस E को हम इंटीग्रल E dA के ऑपरेटर से बाहर ले आएंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटीग्रल E dA इज इक्वल टू E इंटीग्रल dA। ठीक बात है। अब देखो E तो बाहर आ गया, इंटीग्रल dA क्या है? इंटीग्रल dA है जिस क्लोज्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं, यानी गॉसियन सरफेस, उसका पूरा सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब जिस सरफेस का ये छोटा सा एलिमेंट है उस सरफेस का पूरा एरिया, यही तो है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर भी मैंने एक क्लास डाली हुई है यूट्यूब पर, तो जिस भी बच्चे को इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता हो वो उन क्लासेस को भी ज़रूर ले लेना। तो इंटीग्रेशन dA का मतलब उस गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया। अब गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं बेटा, चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी या चार्ज नॉन कंडक्टिंग बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं जिसके सरफेस पे ये चार्ज है। तो देखो मैंने जब एरिया लिखा तो मैंने क्या लिखा, स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई रेडियस स्क्वायर होता है। तो 4 पाई और रेडियस किसका, गॉसियन सरफेस का। ठीक, तो 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे पता है कि किस किस पॉइंट पर बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर आपको कैपिटल आर जो कि स्फेरिकल कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सरफेस का रेडियस है वो नहीं लिखना है, ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस की रेडियस लिखनी है, और गॉसियन सरफेस की रेडियस है पॉइंट P से सेंटर तक की जो भी दूरी है, गॉसियन सरफेस की रेडियस वही है, क्योंकि हमने क्लोज सरफेस उसी रेडियस की बनाई है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया गॉसियन सरफेस का एरिया। और अब देखो क्या किया हमने, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो हमने गॉस लॉ अप्लाई किया था, और लेफ्ट साइड जो गॉस लॉ का था वो पूरा का पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया, डिसाइड कर लिया कि लेफ़्ट साइड क्या होगा। और क्या रहा हमारा लेफ़्ट साइड, यानी कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, क्या रहा हमें हमारा रिजल्ट इसका, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब राइट साइड क्या कहता है कि चार्ज्ड इनक्लोज्ड इन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी हमको Q इनक्लोज्ड की वैल्यू लिखनी है। तो देखो गॉसियन सरफेस जो हमने ली थी, क्या हमारी पूरी चार्ज्ड बॉडी उसके अंदर आ रही है? हाँ, तो इस पर चार्ज अगर Q है तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड मानेंगे, पूरा चार्ज Q। तो हमने गॉसियन सरफेस के इनक्लोज्ड चार्ज की जगह पर लिख दिया, Q इनक्लोज्ड की जगह पर लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो हमारे पास गॉस लॉ के पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आ गया, लेफ्ट साइड यानी फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस सीधे सीधे
फील्ड इनटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस हो जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट हो। और उसके बाद इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। फील्ड निकालनी है तो फील्ड को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़कर बाकी सब राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो हमारे पास आ गई वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने पहले ही कहा था कि मैं K से रिप्रेजेंट करती हूँ कि मुझे बार बार ये वैल्यू बोलनी ना पड़े। तो ये हो गया KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला तो हमने पहले कहीं देखा है। दिस इज फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज and we are taking field at distance r from the point charge। मतलब पॉइंट चार्ज की ही फील्ड इस केस में भी आ गई, जबकि चार्ज तो पॉइंट चार्ज नहीं था। चार्ज तो यूनिफॉर्मली एक स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन जो फील्ड आई वो वही आई जो एक पॉइंट चार्ज की होती है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मेरे सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, क्या कि हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे चार्ज Q स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, चार्ज Q सेंटर पे रखा है नहीं ऐसा। लेकिन रिजल्ट हमको सजेस्ट कर रहा है कि वी कैन टेक द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फेरिकल सरफेस एज द होल चार्ज being placed at the center only। तो ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय केस हो जाता है जैसे चार्ज सेंटर पे रखा है और आर डिस्टेंस पर हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है, और हम फटाफट सीधे फील्ड की वैल्यू लिखते हैं KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था फील्ड कैलकुलेशन एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो जो पॉइंट हमने पिछली बार लिया था वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर था। अगर वो पॉइंट P चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर ना होकर सरफेस पर हो तो कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला हमारा आया था, क्या आया था हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला आया था E एट पॉइंट P is KQ upon R square, where R was distance of point P from the center of spherical body। अब ये पॉइंट P कहाँ है? बाहर ना होकर सरफेस पर है, तो स्मॉल r की जगह सीधे लिख दो कैपिटल R। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा KQ अपॉन रेडियस ऑफ द चार्ज्ड बॉडी स्क्वायर। है आसान ये? और ये वैल्यूज़ बेटा सब याद करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इतनी फॉर्मूले हम लोग एक के बाद एक कर रहे हैं। मैं तुमको इसका भी एक ट्रिक बताऊंगी कि हम कैसे इतने सारे फॉर्मूले लर्न करें। मेरा अपना थोड़ा सा जुगाड़ टाइप है जो मैं बच्चों को अपने क्लास में बताती रहती हूँ कि बेटा चीज़ें इतनी याद करनी है तो अपने माइंड को एक बहुत सेट पैटर्न इन्फॉर्म करना होगा कि भाई ऐसे याद करो चीज़ें। अब तीसरा केस देखो क्या हो गया कि वो जो पॉइंट बाहर था या सरफेस पे था, अब वो पॉइंट P हमने कहीं अंदर ले लिया है स्फेरिकल चार्ज बॉडी के अंदर। और अब इस P पर जिसकी डिस्टेंस सेंटर से अभी भी स्मॉल r है, लेकिन नाउ स्मॉल r इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी
अब यहाँ पर फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, गॉसियन सरफेस जो क्लोज्ड भी हो, पी से पास भी हो रही हो, और वो ये कंडीशन भी फुलफिल करती हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो स्फीयर के हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म ना कहो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की हो, या वो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो हमने स्फेरिकल सरफेस ली क्योंकि ये गॉसियन सरफेस इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। ये बात हमने पी के बाहर होने पर पूरा डिस्कशन करके समझ ली है। तो हमने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया कि क्लोज सरफेस के ऊपर ये इंटीग्रेशन लगेगा, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इससे पहले कि लेफ्ट साइड को डिसाइड करें कि क्या होगी वैल्यू, हम राइट साइड पर ध्यान दें कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो ये तो ज़ीरो हो गया। और अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड ज़ीरो है तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी इस कैलकुलेशन से वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर तो ज़ीरो है नहीं, इस सरफेस का एरिया तो ज़ीरो है नहीं, तो एरिया का मैग्नीट्यूड ज़ीरो तो होने से रहा। तो अगर ये रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या ज़ीरो है, फील्ड। तो अगर वो पॉइंट स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है तो फील्ड ज़ीरो होगी। तो एक बार फिर से इस फैक्ट को अपने दिमाग में खूब क्लियरली रख लो कि अगर चार्ज आउटर सरफेस पर है और कंडक्टिंग बॉडी में हमेशा आउटर सरफेस पर होगा, आप दो चार्ज चाहे कहीं भी, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपको बाहर अगर आपने सिर्फ चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो कोई भी चार्ज गॉसियन सरफेस विच इज़ इनसाइड द स्फेरिकल बॉडी उसके अंदर इनक्लोज नहीं होगा और फील्ड ज़ीरो होगी। इसको बार बार ध्यान से सुनना और दिमाग में ये थॉट चलाना। अब बहुत इम्पॉर्टेंट, ये डेरिवेशन पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, और कॉम्पिटिशन्स में तो इस पर सवाल आते ही हैं, लेकिन ये डायग्राम बहुत पूछते हैं बोर्ड में, बहुत पूछते हैं डायग्राम। क्या है ये डायग्राम? The question being asked is, and it is so frequently asked, that show variation of electric field with distance r of p from the center due to uniformly charged spherical conductor or uniformly charged spherical distribution. Uniformly charged spherical charged is uniformly spherically charged distribution. तो अब हम लोग यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं कि बात हमको ठीक से समझ में आ जाए, और जो चार्ज है वो सिर्फ आउटर सरफेस पर है। अब सोचो, जब तक हम इस चार्ज्ड बॉडी की अंदर थे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ज़ीरो थी, क्योंकि अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस आप बना दो उस गॉसियन सरफेस का क्यू इनक्लोज ज़ीरो था। तो देखो इसके जो रेडियस आर थी वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ये बात समझ आई? जैसे ही आप स्फीयर पर आए, आपको याद है कि क्या वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की?
kq/r²। तो जैसे ही आप आउटर सरफेस पर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम जीरो से वैल्यू जंप करी E(kq/r²). सरफेस पर जहां स्मॉल r की वैल्यू रेडियस के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से जीरो से इस वैल्यू पर जंप कर जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आप P को सेंटर से दूर करते जाते हैं, R बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू kq/r² के अकॉर्डिंग 1/r² के रेट से कम होती जाती है। सी द शेप। Shape is following the relation E is inversely proportional to 1/r². तो up to the point R, field is zero. At point R, that is on the surface, field jumps from zero to actually maximum value kq/radius square of the spherical body. And after that, if R is increased, the electric field decreases according to E, directly proportional to 1/r². So this is very important graph, right? Now copy all the points, whatever I explained you, I have written in my notes also. So you can pause the video and comfortably write all the points, but after understanding all the points, you should write in your notes. And this already I have shown you, but you can still have a look. In the next class, we will discuss electric field of different other cases, how to calculate them. Till then, you keep on practicing the numericals. I have given plenty of numericals in the practice problems. So keep on practicing, and in next class, we will again start the Gauss law, how to apply it on different cases. Till then, all the best बेटा, मेहनत करते रहो, समय खराब नहीं करना।